چھوٹے چھوٹے بچے، یہ 20-20 سال کے نوجوان، کیا دینا چاہتے ہیں آپ ان کو؟ حضرات محترم، یہی مذہب کا رنگ جو اس ہندوستان کے اندر گھل چکا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ حضرات محترم، یہ ختم ہو جائے گا۔ ابتلا ہے، ابتلا ہے، کیا ہے؟ اسٹارٹنگ ہے، اسٹارٹنگ، اور اس کا اینڈ کہاں جا کر کے ہوگا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ رفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى كل ملائكتك المقربين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ آئیے کچھ شہید سے قبل سب سے پہلے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، العالم کے مالک و مختار، نائب پروردگار، تاجدار حرم، چراغ حرم، عادل علی، دعائے خلیل، لطف رب جلیل، احمد المجتبی محمد مصطفیٰ الفدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کے گلدستے پیش کریں، پڑھے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اہل بیتہ و اصحابہ و بارک وسلم، صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ اس پاک پروردگار نے ہمیں رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ دیکھنا نصیب فرمایا۔ اس کا دوسرا عشرہ مغفرت ہے۔ کیا ہے؟ مغفرت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم میں تمام بسنے والے مومنین مومنات، مسلمین مسلمات کی اس رمضان المبارک کے مہینے کے صدقے مغفرت فرمائے۔ حضرات محترم، یوں تو آپ صاحب جانتے ہیں، یو نو ویری ویل ان رمضان المبارک کہ ڈیول بولتے شیطان کو، شیطان قید کر دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں شیطان کیا کر دیا جاتا ہے؟ پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔ جیسا کسی انسان کو تھانے میں بھیج دیتے ہیں، جیل ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے ڈیول کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، شیطان قید کر دیا گیا رمضان میں۔ لیکن سوال اور کوشچن یہ ریز ہوتا ہے، یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب شیطان کو قید کر دیا گیا تو پھر معاشرے میں رمضان میں برائیاں کیوں نظر آتی ہے کہ نہیں؟ سوال جائز ہے کہ شیطان تو قید کر دیا گیا، پابند سلاسل کر دیا گیا رمضان میں، لیکن پھر بھی سوسائٹی کے اندر برائیاں، بے حیائی، بے شرمی، بے غیرتی پھر بھی ریز ہوتی ہے، پھر بھی پنپتی ہے۔ ابھی دیکھا میں نے، ابھی جسٹ اپنی آنکھوں کا حال بتا رہا ہوں میں آپ کو، اللہ رحم کرے ان پہ، سگریٹ کا کش لگا رہے ہیں بالکل کھڑے ہو کے راستے پہ، اور چولا، بس اللہ رحم کرے، اللہ ہدایت دے اگر میری بات آپ تک پہنچ رہی ہو تو۔ یہ ہے شعار ہمارے مسلمانوں کا، سگریٹ کا کش، چھپ کے بھی نہیں، سیدھے راستے پہ کھڑے ہو کے، اور چولا ایسا کہ دیکھ کر کے انسان دھوکہ کھا جائے۔ یہ ہیں آپ مسلمان؟ سگریٹ پینا ہے آپ کو، یا آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تو جا کر کے آپ اپنے گھر میں جا کے پیئے۔ مسلمانوں کے شعار کو آپ بدنام کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں وہ لوگ کہ اذان مسلمانوں کو اٹھا نہیں رہی ہے اور غیروں کو سونے نہیں دے رہی ہے۔
ہاں یہی بات ہے نا. اذان مسلمانوں کو اٹھا نہیں رہی اور غیروں کو سونے نہیں دے رہی. تو حضرات محترم اس میں پرابلم کس کی ہے؟ پرابلم تو ہماری ہے کہ ہم اذان کی آواز کو سن کر کے دوسرے کو جواب نہیں دے پا رہے. ظاہر سی بات ہے جب آپ جواب نہیں دیں گے تو کوسچن ریز ہوں گے. عرض کر رہا تھا کہ شیطان اور ڈیول کو تو قید کر دیا جاتا ہے، پھر رمضان کے مہینے میں یہ برائیاں کیسی، یہ بے حیائی کیسی، یہ بے غیرتی کیسی. یاد رکھیں انسان کے سب سے بڑے 3 دشمن ہیں. کتنے دشمن ہیں؟ ذرا زور سے بولیے. فرسٹ آف آل انسان کا اپنا نفس. کیا ہے؟ نفس. سیکنڈ شیطان ڈیول. دوسرا کیا ہے؟ ذرا زور سے بولیے، آپ کو بھی یاد ہو جائے اس لیے آپ کو بلوا رہا ہوں. فرسٹ نفس، سیکنڈ، تھرڈ دنیا. کیا ہے؟ دنیا. نفس کبھی بھی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا. نفس انسان کے ساتھ ہے، انسان کے اندر ہے، جو انسان کو بے حیائی اور بری باتوں پر ابھارتا ہے. شیطان بھی ایک لمحے کے لیے انسان کا ساتھ نہیں چھوڑتا. جہاں انسان جاتا ہے وہاں شیطان جاتا ہے. آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف سے شیطان کا حملہ ہے. اور تیسری دنیا جو اپنی چکا چوند دکھا کر کے اس انسان کو اپنی طرف راغب کرتی ہے. اور یہ تینوں دشمن اتنے زیادہ طاقتور ہیں، اتنے زیادہ طاقتور ہیں کہ ذرا سا آپ نے ان کو گیپ دیا یا ذرا سی آپ نے ان کو مہلت دی، فوراً آپ پر اٹیک کر دیں گے، فوراً آپ پر اٹیک کریں گے. اتنے جدید ہتھیاروں سے لیس ہیں یہ تینوں دشمن کہ آپ کو سمجھنے کا موقع نہیں دیا جائے گا. اس کی چھوٹی سی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ کس طریقے سے نفس، شیطان اور دنیا انسان پر حملہ ور ہوتی ہے. کتنے دشمن ہیں انسان کے؟ 3. نفس، شیطان، دنیا. حضرات محترم آپ کو معلوم بھی نہیں چلتا ہے اور آپ کے اندر ریاکاری پیدا کر دیتا ہے نفس. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ آپ پڑھ تو رہے ہیں نماز، آپ عبادت تو کر رہے ہیں اللہ کی، آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے سجدے کر رہے ہیں، بس اسی عبادت کے اندر اگر ذرہ برابر بھی تکبر پیدا ہو گیا، ذرہ برابر بھی ریا پیدا ہو گئی، تو سمجھ لیں کہ وہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں پھر قابل قبول نہیں ہوتی. اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ کس وقت نفس اور شیطان نے میری عبادت میں ریا پیدا کر دیا ہے. حضرات محترم اتنے جدید ہتھیاروں سے لیس ہیں یہ تینوں دشمن کہ ان سے آپ کو لڑنا پڑے گا. اور آپ لڑیں گے کیسے؟ آپ ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ ان سے فائٹ کیسے کریں گے؟ یو ہیو ٹو فائٹ ود دس. کیسے کریں گے؟ آپ کو کرنا پڑے گا. جب تک آپ نہیں کریں گے آپ اپنی زندگی کو نہیں سدھار سکتے. یوں تو ڈیول کو قید کر دیا گیا ہے زنجیروں کے اندر، پابند سلاسل کر دیا گیا ہے رمضان کے مہینے میں، لیکن انسان کے جسم کے اندر جو سب سے بڑا شیطان جس کو نفس کہتے ہیں وہ بیٹھا ہے. اب اس کو مارنا ہے. یہی وہ شیطان ہے جو رمضان کے مہینے میں سوسائٹی کے اندر انسان سے برائیاں کراتا ہے. حضرات محترم اللہ نے روزہ انسان کو اس لیے دیا تھا تاکہ انسان پرہیزگار بن جائے، تاکہ انسان تقوی اختیار کرے، تاکہ انسان ریاضت کرے، انسان عبادت کرے، تسبیحات کرے، ذکر و اذکار کر کے اس رب کی بارگاہ میں قابل قبول ہو جائے جس رب کی ناراضگی صرف تو نے ہی نہیں، میں نے ہی نہیں، اس وقت پوری امت مسلمہ نے مول لے رکھی ہے. حضرات محترم کیا وجہ ہے کہ اللہ کی رحمت تجھ سے اور مجھ سے دور ہو گئی ہے؟ کیا اللہ کو کفر پسند ہے؟ کیا اللہ کو غیر پسند ہے؟ نہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی اور میری ضرورت ہے، مجھ جیسے مولوی کی ضرورت ہے اللہ کو؟ نہیں. قرآن میں اللہ فرماتا ہے اے قوم سمجھ لو اور جان لو، اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو پسے پشت ڈال دیا تو اللہ پھر تمہاری
हमारी जगह दूसरी कौम को लाएगा। अल्लाह को मुसलमानों की ज़रूरत नहीं है, मुझे और तुझे ज़रूरत है उस रब की बंदगी की। हज़रात मोहतरम, आपने देखा नहीं, शायद आपको मालूम नहीं, क्योंकि आप हिस्ट्री नहीं पढ़ते। यू डिडंट रीड हिस्ट्री, इस्लामिक हो या और किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाली हो, आपने ना कभी पढ़ी है ना आप कभी शौक़ रखते हैं हिस्ट्री पढ़ने का। लेकिन याद रखें, जो कौम अपनी तारीख भूल जाती है, जो कौम अपनी, जरा याद कर लो इसे, जो कौम अपनी तारीख, इतिहास हिंदी में कहते हैं इतिहास, जो कौम अपना इतिहास भूल जाती है उसको दुनिया से मिटा दिया जाता है, उसको दुनिया से। सुकूत गरनाता किसे याद नहीं, बगदाद की गलियां किसे याद नहीं, आप नहीं जानते, आपको नहीं मालूम है। वो बगदाद जो अंबिया का शहर है, वो बगदाद जो गौसे पाक की जाए पैदाइश है, यही बगदाद था जहाँ पे हलाकू खान ने हमला किया था। यही बगदाद है जहाँ चंगेज के सिपाहियों ने बगदाद की गलियों से खून से लाल लाल कर दिया था। कोई इंसान नजर नहीं आता था बगदाद की गलियों में। उनका जुर्म क्या था कि वो अल्लाह को मानते थे, इस बुनियाद पर उनको कत्ल कर दिया गया। चंगेज और हलाकू ने इतना जुल्म किया है कि बगदाद से लेके गरनाता तक और गरनाता से लेके स्पेन तक कोई गली ऐसी न थी जहां पर मुसलमानों के खून से होली न खेली गई हो। हर गली के अंदर मुसलमान का खून नजर आता था। लेकिन यही चंगेज और हलाकू को अल्लाह तबारक व तआला ने जब हिदायत दी है तो यही चंगेज के बेटे काबे के पासबान बनते हुए नजर आते हैं। यही हलाकू खां के बेटे मक्के की हुर्मत पर अपनी जानों का नजराना पेश करते हुए नजर आते हैं। तभी तो अल्लामा इकबाल ने कहा था, क्या कहा था कि काबे को जो पासबान मिले हैं वो बुतखाने से मिले हैं, यानी बुतखाने की इबादत करने वालों को अल्लाह तबारक व तआला ने जब हिदायत दी तो वो अल्लाह के घर के निगहबान बन गए। हज़रात मोहतरम, तो न समझें आप कि हम मुसलमान हैं टोपी लगाने वाले तो हमारी ज़रूरत है अल्लाह को। आप अल्लाह के कानून को एक तरफ रखेंगे, अल्लाह दूसरी कौम को लाएगा आपके मुकाबले में। तो हज़रात मोहतरम, हमें ज़रूरत है उस रब की इबादत की, तस्बीहात की, ज़िक्र व अस्कार की। अल्लाह ने ये महीना दिया है, ऐसा महीना जो अपने दामन में रहमतें साथ लाया है, बरकतें साथ लाया है, इज़्ज़तें साथ लाया है, फज़ल साथ लाया है, नूर साथ लाया है। नौजवान 25 साल का करियल नौजवान चीटी फाड़ता है, मुंह खोलता है, गुटखा डालता है, रमजान के महीने में दिन दहाड़े चौराहे पे खड़े हो करके। हज़रात मुहतरम, वजह क्या है? एहसास मर गया। एहसास, ये बुरा मानने वाली बात नहीं है। यहाँ से लेके वहाँ तक और यहाँ से लेके वहाँ तक हमारे दिलों में एहसास ख़त्म हो गया है। और जब फीलिंग्स एंड हो जाती हैं इंसान की तो फिर इंसान चलता फिरता मुर्दा नजर आता है। एहसास पैदा करो अपने दिलों के अंदर, एहसास पैदा करो उस रब की बंदगी का, एहसास पैदा करो कि हम मुसलमान। कितने बच्चे तो ऐसे हैं, ऐसे कि शर्म आती है ये बोलते हुए भी कि अपने आप को मुसलमान जाहिर करना नहीं चाहते। कितनों की आइडिया गैरों के नाम से, कितनों की पहचान गैरों के नाम से। दूसरे इस्लाम के दामन में आ रहे हैं लेकिन ये इस्लाम का मानने वाला इस्लाम से दूर जा रहा है। वजह क्या है? एहसास खत्म हो गया। इस्लाम से जो सच्ची मोहब्बत का शौक था वो ख़त्म हो गया। हज़रात मोहतरम, वो ख़त्म क्यों होता है? वो इसलिए ख़त्म होता है कि माल की मोहब्बत जब इंसान के दिल में घर कर जाती है तो फिर इंसान ईमान से, दीन से, शरीयत से, कुरान से, रसूल से दूर होता चला जाता है। वो कैसे होता है? वो सुनिए आप। एक शख्स है, whose name is सालबा। क्या नाम है उसका? सालबा। नबी का जमाना है, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर है।
یہ सालबा बड़ा नमाजी, 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला, लोग इसको मस्जिद नबवी का कबूतर कहा करते हैं। क्या कहते? मस्जिद नबवी का कबूतर कहते। हजरात मुहतरम, लेकिन घर के अंदर बड़ी तंगी थी, घर के अंदर बड़ा फाका था, घर के अंदर बड़ी तंगदस्ती थी। एक मर्तबा आके करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आया। He came to the holy prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and said, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे लिए खुशहाली की दुआ कर दे। क्या कर दे? खुशहाली की दुआ कर दे। आका ने फरमाया, सालबा, जिस हाल में, जिस पोजीशन में, जिस हालत में तुझे अल्लाह तबारक व तआला ने रखा है, उसी में अल्लाह का शुक्र अदा कर। उसी में क्या कर? अल्लाह का शुक्र अदा कर। कुछ दिन के बाद, after a few days, he came to holy prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and said, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लिए खुशहाली की दुआ कर दे। आका ने कहा, जिस हाल में अल्लाह ने तुझे रखा है, उसी में अल्लाह का शुक्र अदा कर। हजरात मुहतरम, जब दुनिया की मोहब्बत इंसान के सर चढ़ के बोलती है ना, तो इंसान चंद सिक्कों के इवज़, चंद टकों के इवज़ अपना ईमान भी बेच देता है। हमने तो आधी आधी प्याली के इवज़ में लोगों के ईमान बिकते देखे हैं। हज़रात मोहतरम, ये तो चंद सिक्के तो बहुत दूर हैं। एक प्याली के इवज़ इंसान अपना ईमान का सौदा कर देता है। ये है हमारी हैसियत, ये है मुस्लिम कौम जो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारीख़ कुरान होकर। हज़रात मोहतरम, आका ने फरमाया, जिस हाल में है उसी में अल्लाह का शुक्र अदा कर। फिर तीसरी मर्तबा आका की बारगाह में आया, आकर के कहने लगा, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे लिए खुशहाली की दुआ कर दें। आका ने नबूवत वाले हाथ उठाए, अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मौला तू इसे खुशहाली अता कर दे। एक बकरी थी उसके पास, इधर आका का दुआ करना था। अल्लाह ने उसकी बकरियों में इतनी बरकत की, इतनी बरकत की कि 1 से 10 हुई, 10 से 20, 20 से 40, 40 से 80, 80 से डबल, उसके बाद 1000, उसके बाद 2000, 3000। अभी तक तो मस्जिद नबवी का कबूतर था, मस्जिद नबवी का कबूतर कहा जाता था सालबा को। हजरात मोहतरम, जब माल ज्यादा हुआ तो अब एक एक वक्त की कम करने लगा, एक एक वक्त की कम करने लगा। अब कभी 4 वक्त में आए, कभी 3 वक्त में आए, कभी 2 वक्त में मस्जिद नबवी में दिखे। हत्ता के माल जब ज्यादा बढ़ा तो 5 वक्त की खत्म हो गई। अब हफ्ते में सिर्फ 1 बार नमाज पढ़ने के लिए आता सालबा, जुमे की नमाज पढ़ता, वापस चला जाता। पूरा जंगल बकरियों से भर गया। क्यों? इसलिए कि आकाए कायनात ने हाथ उठाए थे दुआ के लिए। बरकत की दुआ थी कि पूरा जंगल बकरियों से भर गया। अभी तक तो 5 वक्त आता था, अब 5 वक्त खत्म करके इवन सिर्फ जुमे में आने लगा। अब कुछ दिन के बाद वक्त ऐसा आया कि इवन ही could not attend the जुमा नमाज, कि वो जुमे की नमाज भी अटेंड नहीं कर सकता था। हजरात मोहतरम, कुछ दिन के बाद ज़कात की आयत नाज़िल हुई। आका ने फरमाया अपने सहाबा से, जाओ ज़रा सालबा से ज़कात लेके आओ। जब आका के सहाबी कंपेनियन सालबा की बारगाह में गए सालबा से ज़कात लेने के लिए, कहा आका ने हुक्म फरमाया है कि ज़कात दो। सालबा ने कहा, क्या अब रसूलुल्लाह ने टैक्स भी लगा दिया है? बस ये जुमला कहना था, उसका दीन भी बर्बाद हो गया, उसकी दुनिया भी बर्बाद हो गई। आप सोच रहे थे ना कि आका किस लिए दुआ नहीं कर रहे थे? आका
जानते थे कि अगर इसके पास माल आ गया तो ये दीन भी गवा बैठेगा, दुनिया भी गवा बैठेगा। इसलिए आका उसके लिए खुशहाली की दुआ नहीं कर रहे थे। आका के सहाबियों से सालबा कहता है क्या अब आका ने टैक्स भी लगा दिया है कि मैं ज़कात अदा करूंगा? हज़रात मुहतरम, आका के सहाबी आका की बारगाह में आकर के कहते हैं या रसूल अल्लाह, सालबा ने तो ये कहा है। कुछ दिन के बाद सालबा आया आका की बारगाह में ज़कात ले करके, या रसूल अल्लाह मेरी ज़कात ले लीजिए। आका ने फरमाया अब तेरी ज़कात की ज़रूरत नहीं है। हज़रत अबू बकर के दौर में पेशानी टक टक करके मर गया, लेकिन हज़रत अबू बकर ने भी उसकी ज़कात इसलिए वसूल नहीं की कि जिसकी ज़कात को आका ने कबूल न किया हो। अबू बकर की क्या मजाल है कि उसकी ज़कात को कबूल कर लो। हज़रात मुहतरम, हज़रत उमर के दौर में भी आता रहा ज़कात ले करके, लेकिन हज़रत उमर ने भी उसकी ज़कात को कबूल नहीं किया। अब हज़रत उमर के दौर के अंदर उसका इंतकाल हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि जब माल आता है इंसान के पास कितनी मुसीबतें साथ लाता है, कितनी परेशानियां साथ लाता है। खुशनसीब हैं वो लोग जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने माल दिया है, लेकिन दिल खोल करके उस रब की बारगाह में सदका भी करते हैं, ज़कात भी देते हैं, नफली सदकात भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। हज़रात मुहतरम, इस्लाम तो वो इस्लाम है, आप उस इस्लाम के मानने वाले हैं जिसके बारे में आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया। हदीस पाक सुनिए, आज लोग ताना दे रहे हैं इस्लाम को, खरगोन से लेके गुजरात तक और गुजरात से लेके हज़रात मुहतरम बंगाल की खाड़ी तक कौन सा ऐसा हिस्सा है जहां पर मुसलमानों के खून से होली नहीं खेली जा रही है? हज़रात मुहतरम, मुंसिफ भी वही हैं, कातिल भी वही हैं, जज भी वही हैं, इंसाफ भी उन्हीं के पास है। तेरे पास है क्या आखिर? रह सह करके तेरे पास इश्क़े रसूल की एक दौलत बची थी, वो भी तूने ज़ाया कर दी है। हज़रात मुहतरम, ज़रा सोच तो सही, तुझे इंसाफ कौन देगा? पत्थर भी वो मारते हैं, कत्ल भी वही करते हैं, इंसाफ भी उनके हाथ में है, जज भी वो हैं, मुंसिफ भी वो हैं, सब कुछ वो हैं। तेरे पास क्या है? रह सह के तेरे पास अल्लाह की एक ताकत थी, रसूलुल्लाह का एक इश्क था, वो भी तूने पसे पुश्त डाल दिया है। अब हर इंसान अपनी बारी का इंतजार कर रहा है कि मेरी बारी कब आएगी। तो करिए फिर आप बारी का इंतजार। मुत्तहिद होगे तो कहलाओगे मोमिन गाजी, मुंतशिर होगे तो किस्सों में सफाया होगा। देख रहे हैं ना, ये मुंतशिर होने का हाल है कि खरगोन से लेके बंगाल की खाड़ी तक खून की नदियां बह रही हैं। क्यों? इसलिए कि कौम मुस्लिम मुत्तहिद नहीं है। कौम मुस्लिम मुत्तहिद नहीं है, अपनों का खून पी रहा है मुसलमान। हज़रात मुहतरम, ले दे के रमज़ान का महीना आया था, अल्लाह ने बरकतों वाला महीना दिया था, रहमतों वाला महीना दिया था कि इसमें इंसान अपने अहवाल की, अपने जिस्म की, अपने नशो नुमा की, हज़रात मुहतरम अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों की तौबा करके उस रब के करीब हो जाए। तो रमज़ान के महीने में भी हज़रात मोहतरम हम नेकियां नहीं कर रहे हैं, अपने अहवाल को सोच ही नहीं रहे हैं कि कहाँ पे जाके खड़े हैं हम। ये छोटे छोटे बच्चे, ये 20-20 साल के नौजवान, क्या देना चाहते हैं आप इनको? हज़रात मोहतरम, यही मजहब का रंग जो इस हिंदुस्तान के अंदर घुल चुका है। आप क्या समझते हैं? हज़रात मोहतरम, ये ख़त्म हो जाएगा। इब्तिला है, इब्तिला है, क्या है? स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग। और इसका एंड कहाँ जाकर के होगा आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अपनी नस्लों को अल्लाह और उसके रसूल का गुलाम बनाइए, अपने आप को शरीयत का पाबंद बनाइए, अपने आप को जाहिर करिए दुनिया के अंदर कि हम बहैसियत मुसलमान हैं, हम बहैसियत कौम एक हैं, हम अल्लाह और उसके रसूल के मानने वाले हैं। हज़रात मुहतरम, अर्ज़ कर रहा था, हदीस पाक का तर्जुमा सुने। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी से मरवी है, नबी अकरम ने फरमाया, तुम्हारा अपने मुसलमान भाई के सामने मुस्कुराना ये भी एक सदका है। क्या है? क्या है? जरा सी इस्माइल अगर दूसरे के सामने कर दें तो ये सदका है, मगर इस्माइल करना तो दरकिनार,
ہم بات کرتے ہیں نا آپس میں، جب گیٹ ٹوگیدر ہوتے ہیں اور سامنے ٹاک کرتے ہیں فیس ٹو فیس، تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے زبان سے شرارے نکل رہے ہیں۔ جب بھی بات کرو تو مسکرا کے بات کرو۔ مسکرا کے بات کرنا کیا ہے؟ صدقہ۔ دوسری بات سنیے، تمہارا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ بھی کیا ہے؟ ذرا زور سے بولو، صدقہ۔ نیکی کا حکم دے دو، اگر طاقت ہے تو کسی کو برائی سے روک دو، یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں کیسا ہے؟ جیسے آپ نے صدقہ دیا۔ حضرات محترم، تمہارا بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھانا، یہ بھی صدقہ ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ تمہارا کسی اندھے کو راستہ دکھانا، یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں صدقہ ہے۔ اور تمہارا راستے سے کسی وزنی پتھر کو اٹھا کر کے دوسری جگہ رکھ دینا، یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں صدقہ ہے۔ جو اسلام راستے سے ایک پتھر کو ہٹانے پر کہے کہ صدقہ ہے، وہ اسلام کسی دوسرے پر ظلم کرنے کی اجازت دے گا؟ کتنا پیارا ہے اسلام، لیکن وجہ کیا ہے کہ ہم اسلام کے میسج کو دوسروں تک کنوے نہیں کر پا رہے، کنوے نہیں کر پا رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری ذاتی میں اسلام نہیں ہے۔ کہلانے کو کیا ہے؟ عبداللہ۔ کہلانے کو کیا ہے؟ عبد الرسول۔ کہلانے کو کیا ہے؟ مطیع الرحمن۔ کہلانے کو کیا ہے؟ عبد السبحان۔ لیکن ذات میں اوپر سے لے کے نیچے تک اسلام نظر نہیں آتا۔ حضرات محترم، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کامیاب تم ہی ہوگے بشرطے کہ تم مومن بن جاؤ۔ رحمتیں تبھی برسیں گی جب تم مومن ہوگے، برکتیں تبھی برسیں گی جب تم مومن ہوگے۔ حضرات محترم، عرض کر رہا تھا زکوٰۃ، نماز، زکوٰۃ، نماز۔ حضرات محترم، نماز پڑھنے والے نسبتاً زیادہ ہیں زکوٰۃ دینے والوں سے۔ حضرات محترم، لیکن یاد رکھنا، آپ نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن اگر زکوٰۃ نہیں دی تو وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں، یہ یاد رکھیں آپ، کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ زکوٰۃ دینے سے تیرا مال کم ہو جائے گا، زکوٰۃ دینے سے تیرا مال کم ہو جائے گا۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے، یہ تجھے ہی اور مجھے نہیں بہکاتا، اس نے تو بڑے بڑوں کو بہکایا ہے۔ آپ قرآن سے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں اور تمہارے ایمان کو تازہ کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم سب جانتے ہیں، کتنے جلیل القدر پیغمبر، اتنا جلالی پیغمبر کہ اللہ کلام کرتا ہے حضرت موسیٰ سے کوہ طور پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک قریبی رشتہ دار تھا جس کو دنیا قارون کے نام سے جانتی ہے۔ اس کا نام کیا تھا؟ آپ جانتے نہیں قارون کو؟ بہت بڑا مالدار تھا، بہت بڑا مالدار تھا، لیکن حضرت موسیٰ کا قریبی رشتہ دار تھا۔ اب حضرت موسیٰ کو جب کبھی تورات سننے کا شوق ہوتا تو قارون کو بلاتے اور کہتے کہ تم تورات کی تلاوت کر کے مجھے سنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قارون کو اللہ نے دولت کے ساتھ بڑی اچھی آواز بھی عطا کی تھی۔ جب وہ تورات پڑھتا تھا تو حضرت موسیٰ اس کی تلاوت کو بڑے شوق سے سنتے تھے۔ پتہ چلا بڑے مزے کا آدمی ہے، دین دار بھی ہے اور اللہ نے اس کو دولت سے بھی نوازا ہے، کیونکہ بے دین سے تو موسیٰ تورات نہیں سنیں گے۔ ابھی تک تو ایمان والا ہے، ابھی تک تو دین والا ہے، اسی لیے حضرت موسیٰ تورات سن رہے ہیں۔ بے دین سے تو تورات نہیں سنیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب شوق ہوتا قارون کو بلاتے، تورات کی تلاوت سنتے۔ حضرات محترم، کچھ دن کے بعد میں حضرت موسیٰ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اے موسیٰ اپنی قوم سے زکوٰۃ طلب کرو۔ حضرات محترم، حضرت موسیٰ نے جو کا تو وہی حکم اپنی قوم کو سنا دیا۔ اب جو بیچارے غریب تھے، مڈل کلاس کے لوگ تھے، ان پر تو کوئی بوجھ نہیں تھا، ان پر تو کوئی بوجھ نہیں تھا، انہوں نے جھٹ جھٹ زکوٰۃ دینا شروع کر دیا۔ لیکن قارون جس کے خزانوں کی کنجیاں بہت سارے جانوروں پر لد کے آتی
आती थीं। हजरात मोहतरम आप जरा तसव्वुर करिए, जिसकी कुंजियों का, चाबियों का ये हाल है कि बहुत सारे जानवरों पर लद के आती हों, उसकी तिजोरियों का क्या हाल होगा। और जब उसकी तिजोरियां इतनी होंगी तो उसके पास माल कितना होगा, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को भी पैगाम भिजवाया, कारून अल्लाह का हुक्म आ गया है, अब 2.5% ज़कात दो। हज़रत मोहतरम कारून ने कहा हज़रत मूसा से, ज़रा सोच के जवाब दूंगा। बस यही शैतानी वसवसा है, जब अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म आ जाए तो कुछ मत सोचो, कुछ मत सोचो। जब अल्लाह और उसका रसूल हुक्म दे दें तो उस बात को कर दो जिसका हुक्म आपको दिया जा रहा है। रात मशवरा करने के लिए कारून ने कहा कि 1 दिन का टाइम दो। अब शैतानी वसवसे उसके दिमाग में आने लगे, इतना माल है मेरे पास, 2.5% ज़कात निकालूंगा तो मेरे माल में तो कमी वाक़ई हो जाएगी। जैसा कि आम लोगों के जहन में आता है कि अगर 1 लाख पे 2500 निकाल दिए तो 2500 कम हो जाएंगे। हज़रात मोहतरम याद रखें, ये 2500 जो तूने निकाले हैं ये अल्लाह तबारक व तआला के दिए हुए 1 लाख थे, तब तूने निकाले हैं। अगर लाख न देता तो तेरी तौफीक होती कि तू 2500 निकाल देता। हज़रात मोहतरम अगर वो चाहे तो 1 लाख से तुझे 0 पे भी ला सकता है, 0 पे भी ला सकता है। याद रखें, महशर के मैदान में एक अज़दहा ऐसा होगा कि जिसके दांत लोहे के होंगे, वो लोगों को तलाश करेगा, तलाश करते करते शख्सों को पकड़ेगा, एक का हाथ चबाएगा फिर दूसरा चबाएगा, तो वो इंसान ऐसी चीख मारेगा कि महशर के मैदान में जितने लोग होंगे उसकी चीख सुन के हैरान और परेशान हो जाएंगे। अब मैदान महशर तेरी और मेरी तरह के मैदानों की तरह तो कोई छोटा मैदान नहीं होगा। महशर के मैदान में तो आदम से लेके क़यामत तक आने वाले इंसान जमा होंगे। ऐसी चीख के मैदान महशर में जमा होने वाले इंसान परेशान हो जाएंगे। वो इंसान पूछेगा तू मुझे क्यों काटता है, अब वो जवाब देगा मैं तेरा वही माल हूँ जिस माल की तू ज़कात दुनिया में अदा नहीं करता था। हज़रात मोहतरम ये तब तक डसता रहेगा जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं आएगा। तो ऐसे माल को जमा करके क्या करोगे जो महशर के मैदान में अज़दहा बन के तुम्हारे ऊपर बवाले जान बन जाए। कारून ने कहा कि 1 दिन की मोहलत दो। 1 दिन का जब वक्फा गुजरा उसने एक बदकार औरत को बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि जो मैं तुझसे कहूँ वो तू कर, तू जितना माल बोलेगी उतना दूंगा, या तू ना भी बोले तो मैं तुझे इतना माला माल कर दूंगा कि तूने सोचा भी ना होगा। उस बदकार औरत ने कहा काम क्या है? कारून ने कहा काम ये है जब कल मूसा अपनी कौम से खिताब करेंगे ज़कात के मामले पे, तुम मजमे से खड़ी होकर के ये कह देना कि इस मूसा ने मुझसे ज़बरदस्ती ज़िना किया है। थर्रा गई औरत, कहने लगी कारून क्या कहता है, एक पैगंबर पर मैं ज़िना का इल्ज़ाम लगाऊंगी। हज़रात मोहतरम कारून ने कहा देख ले, एक तरफ दौलत है एक तरफ तेरा घर है, इतनी दौलत दूंगा कि तेरी नस्लें माला माल हो जाएगी। हज़रात मोहतरम अब बदकार तो थी ही, कुछ देर के लिए ख्याल आया था कि मैं नबी पर कैसे इल्ज़ाम लगा दूं, लेकिन कुछ देर के बाद में लालच जीत जाता है। अब तक तो बदकार भी थी लेकिन अब बेज़मीर भी हो गई, बेगैरत भी हो गई। कारून से कहने लगी जो तू कहेगा वो करूंगी। अब आप समझ लीजिए कि माल को बचाने के लिए इंसान कैसे कैसे हीले इस्तेमाल करता है। सुबह का सफेदा नमूदार हुआ, हजरत मूसा कौम से खिताब करने के लिए खड़े हुए, मजमा है ठाटे मारता हुआ समंदर। इससे पहले कि हजरत मूसा कलाम करते कारून खड़ा हुआ, क्वेश्चन किया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से, ऐ मूसा जरा एक सवाल का जवाब बता दीजिए। हजरत मूसा ने कहा कहो क्या कहना चाहते हो। कहा उस शख्स की क्या सजा है जो शादीशुदा हो और किसी औरत से ज़िना कर ले। हजरत मूसा ने कहा कि अगर इस्लामी हुकूमत हो, पहले तो इस्लामी हुकूमत हुआ करती थी, अब तो इस्लामी हुकूमत नहीं है आपके हिंदुस्तान में। जहाँ इस्लामी हुकूमत हो उसकी सज़ा यह है कि इंसान को संसार किया जाता है। क्या किया जाता है?
संसार किया जाता है। इंडोनेशिया में आज भी ये सज़ा दी जाती है, अफ़गानिस्तान में भी आज ये सज़ा दी जाती है कि अगर कोई ज़िना कर ले और उसका ज़िना प्रूफ हो जाए तो उसको बीच मैदान में खड़े होकर के पत्थर मारे जाते हैं ताकि ये इंसान दूसरों के लिए निशान इबरत बन जाए। हज़रात मोहतरम, बात करते हो सऊदी की, बात करते हो मुस्लिम ममालिक की, तो वहाँ तो चोरों का हाथ काटा जाता है। क्यों हिंदुस्तान में चोर का हाथ नहीं काटते? आज ही काटना शुरू कर दो, चोरियां खत्म हो जाएंगी। वहां तो रैपिस्ट को फांसी दी जाती है, यहाँ पे जरा रैपिस्ट को भी चौराहे पे खड़े होकर के फांसी दो, ये ज़िना खत्म हो जाएंगे, रेप खत्म हो जाएंगे। अपने मतलब की चीजें लाते हो वहां से उठा के, जो तुम्हारे मतलब की नहीं होती उनको वहीं छोड़ देते हो। हज़रात मोहतरम, अर्ज कर रहा था, कारून ने कहा उसकी सजा क्या है? जो शादीशुदा हो और किसी औरत से ज़िना कर ले, कहा उसको पूरी कौम के सामने संसार कर दिया जाएगा। उसने उसी औरत को इशारा किया और कहा कि अब खड़ा होकर के पूरे मजमे में ये कह कि मूसा ने मेरे साथ ज़िना किया है। कहा इस औरत के बारे में क्या कहते हो? कहा कौन सी औरत? इशारा हुआ कारून का, खड़ी हुई। जैसे ही खड़ी हुई, कारून ने कहा कि आपने इस औरत के साथ ज़िना किया है। पूरी कौम हैरत में है। हजरत मूसा जलाले पैगंबरी के साथ जब खड़े होते हैं और उस औरत की तरफ गज़ब की हालत में जब देखते हैं, ऐसा गज़ब कि जब हजरत मूसा गज़ब में आते तो आपके बाल कुर्ते से बाहर आ जाया करते थे। तारीख के अंदर आता है कि आपके अमामे से शुआएं निकलती थी जब आप गज़ब में होते थे। जब पैगंबराना जलाल के साथ उस औरत को देखा, थर्रा गई वो औरत, कांप गई वो औरत। मजमे से कहती है, ये कारून है जिसने मुझे कहा था कि मूसा पे इल्ज़ाम लगाओ कि इन्होंने मेरे साथ ज़िना किया है। हज़रात मोहतरम, बात सच्ची की सच्ची हो गई, दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। अब आवाज़ आई हज़रत मूसा पर, ऐ मूसा, तेरे ही रिश्तेदार ने, जिसको हमने दुनिया में नवाजा, जो तेरा रिश्तेदार था कारून, उसने तेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया है। ये मुजरिम है तेरा और मेरा, इसको क्या सजा देनी चाहिए? हजरत मूसा ने कहा, मौला जो तू सजा देना चाहे दे दे। अल्लाह फरमाता है, मूसा ये तेरा मुजरिम है, तेरा, तू बता के इसको क्या सजा दी जाएगी। अब हजरत मूसा अर्ज करते हैं कारून को मुखातब करके कि ऐ ज़मीन, तू इसको अपने अंदर धंसा ले। बस इतना कहना था, कारून ज़मीन में धंस गया। जब आधा धंसा तो बेगैरत था, बेदीन था। जाते जाते हजरत मूसा से कह रहा है, ऐ मूसा बड़ी अच्छी प्लानिंग है, मुझको ज़मीन में धंसा करके मेरे माल पे कब्जा करना चाहते हो। हजरत मूसा ने ज़मीन से कहा रुक, उसके माल की तरफ इशारा किया कि इसका माल जितना है इसके सर पे इकट्ठा हो जाए। एक तो अब तक अज़ाब था, दूसरा माल का अज़ाब सर पे इकट्ठा हुआ। तब हजरत मूसा ने कहा, ऐ ज़मीन, इसको और इसके माल को ज़मीन में धंसा दे। कुरान कहता है कि उसका माल भी ज़मीन में धंस गया, वो खुद भी ज़मीन में धंस गया। हजरात मुहतरम, अगर ज़कात दे देता तो अल्लाह की बारगाह में भी सरखुरू हो जाता, हजरत मूसा की बारगाह में भी सरखुरू हो जाता। आप तो बच रहे ना ज़कात देने से। जरा उन पड़ोसियों का ख्याल करिए जिनके घरों में चूल्हे नहीं जलते, जरा उन रिश्तेदारों का ख्याल करिए जो हजरात मोहतरम अस्पतालों के अंदर एक एक टैबलेट को परेशान हैं, अपने बच्चों को 1,000 के खिलौने दिलाने वालों, 1,000 के 2,000 के कपड़े पहनने वालों, जरा अपने अंदर एहसास पैदा करो कि तुम्हारे मुआशरे के अंदर तुम्हारे करीब ही कोई ऐसा शख्स तो नहीं है जो कपड़ों को तरस रहा हो, जो दवाइयों को तरस रहा हो। अपनी ज़कात आप उन पर सर्व कीजिए। मैंने कुरान की आयत तिलावत की थी, इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राए वल मसाकीन। ज़कात किसको देना चाहिए? सबसे पहले फ़कीर को। किसको? ज़रा जोर से बोलिए, फ़कीर को। अब आप जो देखते नहीं मुआशरे में, ऐसे फ़कीर नहीं कि जिनके पास में एक्टिवा हो, जिनके पास में बुलेटें हो, जो खुद भी मालिक निसाब हो लेकिन देखने में फ़कीर हो, आप उनको अपनी ज़कात देते हैं? नहीं, जिसके पास ना घर हो, ना मकान हो, ना कुछ हो, बिल्कुल फ़कीर हो, एक वक्त का खाना भी ना हो उसके पास, उसको आप ज़कात देंगे। दूसरा मसाकीन। क्या? मसाकीन। मसाकीन कौन है? जो मालिक निसाब ना हो, जो मालिक
निसाब ना हो। हजरात मुहतरम, मसाकीन को देंगे आप। तीसरा, जो कर्ज में डूबा हुआ हो, जो कर्ज में मिसाल के तौर पर, इवन मैं ही कर्ज में डूबा हुआ हूँ, मिसाल के तौर पे मैं ही कर्ज में डूबा हुआ हूँ, तो आप मुझे ज़कात दे सकते हैं। ये शख्स कर्ज में डूबा हुआ है, या आपका कोई रिश्तेदार कर्ज में डूबा हुआ है, उसको कर्ज से बाहर लाने के लिए आप उसको ज़कात देंगे। तीसरा, अल्लाह की राह में निकलने वाले, जैसे कि मिसाल के तौर पर मदारिस के तलबा अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं, इल्म हासिल करते हैं, तो इसी वजह से तो आप मदारिस के अंदर ज़कात देते हैं, तो उनको ज़कात देना। तीसरा मुसाफिर, पांचवा मुसाफिर, कौन सा मुसाफिर? अगर मैं मालिक निसाब हूँ, हुबली में रहता हूँ, मैं मालिक निसाब हूँ, ज़कात दे सकता हूँ। मैंने सफ़र किया बेंगलोर का, बेंगलोर में जाके मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए, बेंगलोर में जाके मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए, लेकिन हुबली में मैं मालिक निसाब हूँ, बेंगलोर में मेरे पास पैसे खत्म हो चुके हैं, मैं मुसाफिर हूँ। कुरान की रूह से अब आप मुझको ज़कात दे सकते हैं, मुसाफिर को ज़कात दें। अब हज़रात मोहतरम, किन को ज़कात देना चाहिए और किन को ज़कात नहीं देना चाहिए, दो जुमले में आप सुन लीजिए। जिनसे हम पैदा हैं, जिनसे, ज़रा जोर से बोलिए आपके समझ में आएगा, जिनसे हम पैदा हैं उनको ज़कात नहीं देंगे। अब हम किन से पैदा हैं? अपने माँ बाप से, दादा दादी, परदादा परदादी, अब ऊपर तक चले जाइए, आपको जितना जाना है, इनको आप ज़कात नहीं दे सकते। ज़रा जोर से बोलिए। जिनसे हम पैदा हैं, बाप माँ, दादा दादी, परदादा परदादी, लकड़ दादा, अब चले जाइए, आपको जितना ऊपर जाना है। और जो हमसे पैदा हैं, जो हमसे पैदा, हमसे कौन पैदा होगा? हमारे बेटे और हमारे बेटे। अब हमसे जो भी पैदा होंगे उनको आप ज़कात नहीं देंगे, जैसा कि मियाँ बीवी, बेटा बेटी, उनके बेटे बेटी, आप उनको ज़कात नहीं देंगे। अब आप ज़कात देना किसकी है? आपको भाई है, ज़कात दे सकते, भतीजा है, ज़कात दे सकते, भांजी है, ज़कात दे सकते, चची है, ज़कात दे सकते, फूफी है, ज़कात दे सकते, और जो जितने दूर के रिश्तेदार हैं आप उन सबको ज़कात देंगे। बस दो रूल अपने जहन में रख लें, जिनसे हम पैदा हैं उस कड़ी में जितने लोग आते हैं उनको ज़कात नहीं देना है, और जो हमसे पैदा हैं आप उनको ज़कात नहीं देंगे, बाकी बचे रिश्तेदार आप सब उनको ज़कात देंगे। हज़रात मुहतरम, अब ज़कात है किस पे? जो मालिक निसाब हो, आकिल हो, बालिग हो। अब मालिक निसाब कितने माल से बनता है? जरा जोर से बोलिए। 7.5 तोले सोना और 52 तोले चांदी। अभी मार्केट के अंदर 1 तोले की कीमत क्या है गोल्ड की? जरा जोर से बोले, कुछ लोगों को तो याद होगी। कितनी? हाँ, तो 7.5 तोले सोने की कीमत कितनी हो गई? जरा कैलकुलेशन करके बताइए, कितनी? हाँ, इतने पैसे के अगर आप मालिक हैं तो आप पर ज़कात है। और अगर आपके पास में इतना सोना नहीं है, 52 तोले चांदी है, और उसकी कीमत अगर आपके पास में है, तब भी आप मालिक निसाब हैं। हजरात मोहतरम, अब दूसरी शक्ल आती है कि 7.5 तोले तो सोना नहीं है मेरे पास में, 3 तोले सोना है, 4 तोले सोना है, लेकिन कुछ मेरे पास चांदी है। तो आप चांदी और सोने को मिलाएंगे और उसकी कीमत देखेंगे कि अगर 7.5 तोले तक पहुंच गया तब भी आप मालिक निसाब हैं। अगर सोने तक नहीं पहुंचता, उसकी कीमत 52 तोले चांदी तक पहुंच रही है, तब भी आप मालिक निसाब हैं। अब हजरात मुहतरम आगे बढ़िए। बहुत सारे लोग कुछ प्लाट्स खरीदते हैं, बहुत सारे लोग कुछ घर खरीदते हैं। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन वाला मसला है जो मैं इसको हल किए देता हूँ। अब आपने नियत की, आपने कोई प्लाट खरीदा, नियत करी है आपने कि अगर आगे इसका रेट बढ़ेगा तो मैं क्या करूँगा, बेच दूंगा। हजरात मोहतरम, मिसाल के तौर पे आपने 3 लाख का खरीदा या 2 लाख का खरीदा, आपकी नीयत है कि मैं इससे तिजारत करूंगा, बेच दूंगा, तो उस पर ज़कात है। अगर आपने घर के लिए लिया है तो उस पर ज़कात नहीं है। और अगर आप बैन मसला है, पता नहीं दिल के अंदर आप नियत ही नहीं कर पा रहे हैं कि यार इसको तिजारत के लिए रखूं कि घर बनाने के लिए रखूं, तिजारत के लिए रखूं कि घर बनाने के लिए रखूं, तो फिर ऐसी सूरत में ज़कात
نہیں ہوگی. آپ کو نیت کرنا پڑے گی یا تو تجارت کی یا گھر کی. اگر تجارت کے لیے لیا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے, گھر کے لیے لیا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اب اور آگے بڑھیے, آپ نے وہ 2 لاکھ لے کے پلاٹ تو لے لیا, مثال کے طور پہ ابھی آپ کے پاس میں پیسے نہیں ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں حضرت میں قرض لے کے زکوٰۃ دے دوں. اما پہلے سے تو بوجھ تلے تباہ ہوا ہے, قرض لے کے زکوٰۃ کیوں ادا کرے گا؟ قرض لے کے زکوٰۃ تو ادا ہو سکتی ہے, مگر اسلام نے آپ کو چھٹی دی ہے. اسلام نے آپ کو اجازت دی ہے. کیا اجازت دی ہے؟ کہ اگر تیرے پاس ابھی ہے وہ جو 2 لاکھ کا پلاٹ تو نے خریدا ہے, اگر پیسہ ابھی ہے تو زکوٰۃ دے دے, اور اگر ابھی پیسہ نہیں ہے جب تو بیچے گا جتنے سال کی زکوٰۃ تیرے اوپر باقی رہے گی پھر اتنے سال کی زکوٰۃ آپ کو دینا ہوگی. حضرات محترم, آپ جو گھر کی چیزیں استعمال کرتے ہیں, مثال کے طور پہ بائک ہو, کار ہو, بنگلہ ہو, اگر وہ بلینروں کا بھی آپ کے پاس میں ہے تو یوز کی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے. یوز کی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے. تجارت کی قرض سے جو چیز لی جاتی ہے اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے. آپ نے کسی کو قرض حسنہ دیا ہے 5 لاکھ 10 لاکھ, آج تو لوگ قرضہ لے کر کے حضرات محترم امانت میں خیانت کر لیتے ہیں. آج اگر آپ کو کسی سے لڑائی کرنی ہے نا, لڑائی, تو آپ جھگڑا مت کریے, ڈنڈے مت چلائیے. آپ کو اگر کسی سے دشمنی مول لینی ہے تو اس کو آپ قرضہ دے دیجئے, پھر آپ دیکھیے کہ وہ آپ کو کس طریقے سے لوٹا کر کے واپس کرتا ہے. حضرات محترم, اگر آپ نے کسی کو قرض حسنہ دیا ہے 5 لاکھ, ابھی آپ کے پاس میں پیسے نہیں ہیں, لیکن حضرات محترم وہ آپ کی ملکیت ہے, آپ کو اس کی زکوٰۃ دینا ہوگی. اگر آپ کے پاس میں ابھی نہیں ہے تو آپ مت دیجئے. جب وہ پیسہ آپ کے پاس میں آئے گا تو جتنے سال آپ نے زکوٰۃ نہیں دی ہے ان 5 لاکھ کی, اتنے سال کی آپ زکوٰۃ ادا کریں گے. اب مثال کے طور پہ کسی کے پاس میں 2 لاکھ روپے ہیں اور 4 تولے یا 4.5 تولے سونا ہے, اس نے آدھا تولا سونا بینک کے اندر رکھ دیا, آدھا تولا سونا بینک کے اندر رکھ دیا, 4 تولے سونا بچا اور کچھ پیسے ہیں. تو حضرات محترم اب زکوٰۃ کیسے ہوگی؟ تو وہ پیسہ جو اس نے بینک سے اٹھایا ہے آدھا تولا لے کر کے, وہ پیسہ اب اس کی ملکیت ہے. اب ان 4 تولوں کو کاؤنٹ کرے گا اور اس پیسے کو کاؤنٹ کرے گا. اگر 7.5 تولے سونے تک اس کی مقدار پہنچتی ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ ہوگی, اگر نہیں پہنچتی ہے تو پھر یہ مالک نصاب نہیں ہوگا. مثال کے طور پر کسی کی 2 لاکھ تنخواہ ہے تو لوگ کہتے ہیں حضرت کیا ہماری اس سیلری پر زکوٰۃ ہوگی؟ تو سیلری پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے, سیونگ پر زکوٰۃ ہوتی ہے. سیونگ پر زکوٰۃ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ آپ کی 2 لاکھ تنخواہ ہے اور آپ کا خرچہ ہے 1,90,000 مہینے کا. 2 لاکھ تنخواہ 1,90,000 آپ نے خرچ کر دیے تو آپ تو خود زکوٰۃ کے مستحق ہو گئے, زکوٰۃ کے حقدار ہو گئے آپ, کیونکہ آپ کے پاس بس 10,000 روپے بچ رہے ہیں. ہاں, اگر آپ کی تنخواہ ہے 2 لاکھ اور آپ کا خرچہ ہے کل 30,000 یا 20,000 یا 40,000, باقی کی جو رقم بچے گی سیونگ میں پھر اس پر زکوٰۃ دی جائے گی. حضرات محترم, زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں زکوٰۃ ادا کریں اگر مالک نصاب ہیں, ورنہ یہ مال آپ کو کل محشر کے میدان میں کوئی فائدہ نہیں دے گا. یہی مال عذاب بن کے تمہارے اوپر حملہ ور ہوگا. حضرات محترم, اس لیے بہتر ہے کہ اس دنیا کے اندر رہ کر کے آپ اس مال کی زکوٰۃ ادا کر دیں اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالک نصاب بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. صدقات کریں, خیرات کریں, رمضان کا مہینہ ہے, پھر نہ جانے یہ رمضان کا مہینہ دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو, اس لیے جتنا ہو سکے اللہ کی بارگاہ میں دل کھول کر کے صدقہ و خیرات کریے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کے ہی وضع کو 70 عطا کرے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب خطیئۃ وذنبتہ واتوب الیہ. ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد